Hello students, today we'll start with the new chapter of physics, reflection of light. Till now just we have completed our previous chapter, heat. After this, in the sequence I am taking up the next chapter, reflection of light. It is chapter number 6 of your book, and from today all the videos, whenever you see any videos, then kindly keep your book ready in your hand. Okay, kindly keep a book and a highlighter or a pencil or a marker, whatsoever feels you find, keep it handy with you, because I'll take the reference of your book as per the request of students, that I'll take all the topics in reference of your books now. Okay, though I was taking the topics from the book, but the sequence might be different. All the topics are same, but from now onwards, from this chapter onwards, you will find a perfect sequence according to your book. So you must have a book with you. Kindly pause the video and get a book of you, and also a marker, so that you can highlight or mark the important points which I'll dictate here. And along with this, I'll also try to explain the concepts to you in Hindi, so that you can understood it well. So first see this picture, and it is a picture of some bridge. There is a water, and you can easily see a reflection of the bridge in this water, and you can also see the reflection of these buildings in the water. Now the word which I am using is reflection, and that is the topic that we'll take up today. We'll discuss about the reflection of light. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जैसा भी ब्रिज यहाँ बना है, जैसी भी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, ठीक वैसे ही आपको पानी के अंदर भी दिख रही है. तो व्हाट इज दिस? दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी हमें ऐसा दिख रहा है. तो हमें ये पता करना है, हमें ये पढ़ना है अपने इस टॉपिक में कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है. हमेशा तो ऐसा नहीं होता. हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो तो हमें नहीं, उसका रिफ्लेक्शन तो नहीं दिखता है. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं. तो हमें ये ठीक तरीके से डिस्क्राइब करना है, और वी हैव टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मोरओवर रिफ्लेक्शन तो हम रोज ही देखते हैं. वी सी रिफ्लेक्शन डेली in our day-to-day life. The most common example of a reflection is when we look into a mirror. जब हम शीशा देखते हैं, तैयार होते समय मिरर देखते हैं, तो एक्चुअली में हम अपना रिफ्लेक्शन उसमें देख रहे हैं. वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट यूज है. वी आर सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉडी और द फेस इन दैट मिरर. तो वहाँ पे भी हम यही कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये जो वाटर है, जो पानी भरा हुआ है, ये मिरर का काम कर रहा है. The same is the concept which we use daily in our day-to-day life. So now I will take up first definition of reflection. थोड़ा definition देखेंगे, फिर उसके बारे में आपको और explanation देंगे. बुक आप अपनी ले आए होंगे अब, and you see it is on the page number 166. 166 is the page number of this topic. देखिए, reflection of light क्या है? See, it is a phenomena in which light returns to the same medium after striking the plane surface. Yes, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट वापस अपने मीडियम में चली जाए जहां से वो आ रही थी, एक प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद. As given in your book is, reflection is a phenomena in which light rays on striking a surface are sent back into the same medium. दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं. आपको जो सिंपल लगे, जो आपको बढ़िया समझ में आए, आप वो लिख सकते हैं. क्या होता है? When light falls on a plane surface, a part of it returns to the same medium, and some part of incident light is either absorbed or transmitted in the case of transparent medium. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल कर रही है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वापस मीडियम में चला जाता है,
जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, मैंने आपको एक ब्रिज की जो है पिक्चर दिखाई, ब्रिज से लाइट रिफ्लेक्ट हुई वाटर में और वापस चली गई अपने मीडियम में, मतलब एयर में, तो उसकी जो इमेज है वो वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस पे बन रही है। ऐसे ही हम जब सुबह शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो हमारी इमेज उसमें बनती है, और वो इमेज हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस पहुंच रही है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो वर्ड इंसिडेंट आ रहा है, इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है जो लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करती है। अभी हम आगे ही टॉपिक्स देखेंगे, टर्मिनोलॉजी अभी हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हमें यूज करने हैं, तो इंसिडेंट वहां पे कवर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, कई बार लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है मीडियम में, कहीं भी नहीं जाती। ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट फॉल करें, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो लाइट बिल्कुल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब ना वहां से रिफ्लेक्ट होगी, ना उसको पार करेगी, ना ही उसको क्रॉस करेगी, ना ही उसमें ट्रांसमिट होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, मिरर का ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि लाइट ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिट कैसे होगी लाइट? जैसे कि ग्लास जो लगे होते हैं, जो हमारे विंडो पेन्स होते हैं, शीशे जो लगे होते हैं खिड़कियों में, उसमें से लाइट क्या होता है, लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। हम इधर खड़े होकर शीशे के बाहर का आराम से देख सकते हैं, तो वहां पे लाइट का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, और लाइट का ट्रांसमिशन हो सकता है। ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है कि कौन सा फिनोमिना होगा? इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। सरफेस बताएगा कि क्या फिनोमिना होगा। अगर आप वुड के ऊपर कोई लाइट फॉल करें, वुड लकड़ी के ऊपर, तो वहां पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ना रिफ्लेक्शन होगा ना ही ट्रांसमिशन होगा। वही लाइट आप किसी मिरर के ऊपर डालें तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम टॉर्च मिरर के ऊपर लगाएं तो हमें उसका रिफ्लेक्शन स्पॉट वॉल पे अपने रूम में दिखता है। साथ ही में ट्रांसमिशन का मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया है। शीशे लगे होते हैं कई जगह, दरवाजे में लगे होते हैं, खिड़कियों में लगे होते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, तभी तो हमें दूसरी तरफ का दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। देन द सेंसेशन ऑफ विजन इज क्रिएटेड। द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट from any surface is received by human eye and a sensation of vision is created and non-luminous object become visible। ये नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर खुद की कोई लाइट नहीं, दैट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और तब वो हमें कब दिखेंगे? जब वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। आप किसी रूम में जाओ, रूम में कंप्लीट डार्कनेस हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही आप लाइट स्विच ऑन करेंगे, यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन द रूम। Why? Because light will be reflected from those objects and your eyes will catch up that light and it will be visible to you। ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में ही हमें कोई भी चीज दिख सकती है। So light is an energy which creates the sensation of vision or the sensation of sight। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे विंड एनर्जी है, अभी हमने हीट एनर्जी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, वैसे ही लाइट एक एनर्जी है। व्हाट इज द वर्क? द वर्क इज टू मेक थिंग्स विजिबल। अगर लाइट नहीं है तो हमें चीजें दिखेंगी नहीं, तो लाइट का काम है टू मेक थिंग्स विजिबल। नाउ व्हाट इज, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ये बताएगा, सरफेस ये बताएगा कि हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो इट इज गिवन द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। हर सरफेस से बराबर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। कई बार अगर बहुत फ्लोर है, अगर फ्लोर बहुत स्मूथ है, बहुत शाइनी है, ग्लॉसी फ्लोर है जिसे ग्लॉसी बोलते हैं, तो वहां से भी रिफ्लेक्शन आता है। टाइल्स लगे होते हैं ग्लॉसी, उस पर आप लाइट जलाओ, उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। उस पर आप टॉर्च लगाओ, टॉर्च का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है। वहीं मिरर का ले लो तो मिरर पे रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इट इज मैक्सिमम फॉर हाईली पॉलिश्ड और सिल्वर्ड सरफेस लाइक प्लेन मिरर। जो बहुत ही पॉलिश्ड सरफेस होते हैं और जो मिरर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हमें शो करते हैं। So after this was a brief introduction of what a light is and what is a reflection of light. Again, I'll repeat: light is a form of energy.
and light is actually a electromagnetic wave. Light is a wave of type electromagnetic wave. और सबसे स्पेशल बात लाइट के बारे में आपको ध्यान रखनी है, लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल. लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल मतलब लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकती है. वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस जहाँ पे एयर भी नहीं है. इफ अगर हम एयर किसी भी मीडियम से निकाल लें, अगर हम किसी भी चैम्बर से एयर को भी निकाल लें तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. वैक्यूम में देयर इज नथिंग, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी. अगर हम ऐसे कोई बॉटल रखें आपके सामने तो अगर पूछा जाए इज इट एम्प्टी, नो इट इज नॉट एम्प्टी. व्हाई? बिकॉज एयर इज देयर. कुछ नहीं है बॉटल में तो एयर होगी, एम्प्टी कितना भी हो लेकिन एयर तो है. अगर हम एयर भी निकाल लें तो हम उसे बोलेंगे वैक्यूम. देन वी विल से दैट वैक्यूम हैज बीन क्रिएटेड. हेंस लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. उसमें अगर आप लाइट जलाओ तो लाइट उसके आर पार चली जाएगी, इट विल ट्रेवल. वहीं पे साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगी. साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल. वैक्यूम में अगर आप बोलेंगे तो आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी. Why? Because the sound propagates with the help of the medium particles. मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तभी तो आवाज निकलती है, तभी तो आवाज सुनाई पड़ती है. एल्स इट विल नॉट बी ऑडिबल. तो ये दो प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी है. अभी हम बात करेंगे आपसे टर्म्स. अभी मैंने बोला था टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे. तो पहला ही टर्म हमारा आ गया इंसिडेंट रे. क्या है इंसिडेंट रे? एनी रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम डाल रहे हैं वो इंसिडेंट रे है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे रे जो है मीट कर रही है, द पॉइंट एट विच रे फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो हमें लाइट का रिफ्लेक्शन मिल रहा है. द ray of light returns to the same medium after striking the surface is called reflected ray. जो light ray वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, that is the reflection of light, that is the reflected ray. फिर एक नया कॉन्सेप्ट इसमें है नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे ड्रॉ करी हुई लाइन. So normal, it is a perpendicular drawn to the surface at the point of incidence. अभी हम नेक्स्ट एक डायग्राम देखेंगे, उसमें आज चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ये वो डायग्राम भी हमारे पास आ गया है. देखिए ये हमारा सरफेस है एम एम डैश. ये सरफेस है. ये पॉइंट ओ जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. क्यों? क्योंकि ये लाइट रे आ रही है ए ओ और यहाँ पे टकरा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. और ए ओ दिस इज द इंसिडेंट रे. ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई ए ओ. अब क्या हुआ, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस था. रे यहाँ से टकरा करके वापिस चली गई. कहाँ चली गई? ओ बी में. द रे वेंट फ्रॉम ए से ओ आई थी, ओ से बी चली गई. सो ए ओ इज द इंसिडेंट रे. और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी, ये कब मिली है? जहां पे लाइट टकराने के बाद. सो ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? ओ. नॉर्मल क्या है? ओ एन. क्यों? क्योंकि ओ एन का एंगल एम एम डैश से 90 डिग्री है. सो दैट इज ऑल अबाउट द टर्म्स विच वी हैव स्टडीड. अब आगे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आप देख लीजिए आई से डिनोट करते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आर से डिनोट करते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये दो एंगल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं. फिर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस. इट इज द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. जो आपको ये सामने व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस इज द प्लेन. व्हाई? बिकॉज इन दिस प्लेन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर प्रेजेंट. ओके, सो दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस. देन देयर इज अ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. इट कंटेन्स द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक 3D डायग्राम के थ्रू दिखाऊं. ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इतनी है. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूं फिर से. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल. ये 5 टर्म्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल. These are the 5 important, very important terms. और ये डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जो है
वो कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। क्या है वो लॉ? पहली बात तो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। क्या है वो दो लॉ हम देखते हैं। ये डायग्राम हमारा पुराना वाला है, इसी के रेफरेंस में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस ये एंगल R। तो I और R हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपका पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 दिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 होगा, अंडरस्टूड है। अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 होगा। सेकंड क्या है? सेकंड कहता है इंसिडेंट रे, आपको मालूम है कौन सी है, AO, रिफ्लेक्टेड रे OB, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, NO, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों चीजें सेम प्लेन में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। तो ये प्लेन का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको 3D डायग्राम के थ्रू बेटर समझा पाऊंगा। आई विल टेक अप दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, प्लेन मीन्स अ सरफेस ऑफ हैविंग, सपोज आप ग्राफ बनाते हो तो आप x एक्सिस और y एक्सिस लेते हो, तो वो जो आपका प्लेन होता है वो XY प्लेन होता है, दैट इज अ प्लेन। ओके, सी सम नोट इज गिवन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें लिखा है? व्हेन द रेज फॉल नॉर्मली ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मली का मतलब समझ लीजिए, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये देखिए AO राइट, सीधे सीधे इसमें फॉल कर रही है AO। अभी हमने डायग्राम में देखा था ये एंगल पे आ रही थी, एंगल नहीं है, इट इज फॉलिंग स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस AO। अगर इस तरीके का आपको डायग्राम में मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्यों? क्योंकि ये एंगल है ही नहीं, ये जो लाइट AO है ये NO से ओवरलैप कर रही है। इन दिस सिचुएशन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0, एंड इट मीन्स दैट लाइट retraces the path। retraces the path मतलब जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये डायग्राम यहाँ पे देखें तो इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, लेकिन अगर हमें सेम पाथ रिट्रेस करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका एरो लगा हुआ है लाइट जाने आने के लिए, और ये एरो लगा हुआ है इसी लाइन पे एरो लाइट के वापस जाने के लिए। इसका मतलब लाइट जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली गई है। ऐसा कब होगा? जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ाया है कि एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझा है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आप ही कॉपी में लिखने हैं, साथ में आपको ये दोनों ही डायग्राम बनाने हैं और ये नोट भी लिखना है। नोट में आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिएगा, व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, एक पॉइंट ये लिखना है, और दूसरा आप वहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ I एंड एंगल ऑफ R बोथ आर 0। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है। Next, we'll proceed with this, and again I'll repeat that consult your book for any topics, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपके बुक से रिलेटेड ही ले रहा हूँ, बिल्कुल बुक की सीक्वेंस में ले रहा हूँ। थोड़ा सा चेंज हो सकता है सिर्फ लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। और अब बेटर रहेगा, आपको अलग अलग बुक्स की लैंग्वेज मिल रही है, जो आपको ईजी लगेगा आप वो लिख सकते हैं। बुक आपकी थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पे जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्स्ट मैं इसमें दे रहा हूँ, तो इट इज़ बेटर फॉर यू दैट यू आर एबल टू get the text of 2 different books at a time. Okay, thank you all of you. For any queries you can contact me.